Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID, as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. Hello and welcome back to Steven Sir Makes It Easy, जहाँ पे लेजर के एक यूनिक प्रॉब्लम को है तो बड़ा सिंपल आज हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. ओके, आपको प्लीज़ अंडरस्टैंड करना है कि जब भी हम लेजर सॉल्व करते हैं ना, लेजर काफ़ी वेराइटीज़ के होते हैं. पर्सनल अकाउंट के भी लेजर्स बनते हैं, मतलब नेम ऑफ पीपल, इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस. रियल अकाउंट के भी बनते हैं, मतलब एसेट्स जैसे कैश होता है, फर्नीचर, मशीनरी, प्लांट. और नॉमिनल के भी लेजर्स बनते हैं, मतलब इनकम और एक्सपेंस. सैलरी होगा, रेंट होगा, डिस्काउंट होगा, इंटरेस्ट होगा, कमीशन होगा, इलेक्ट्रिसिटी होगा, वेजेस होगा. नॉमिनल अकाउंट्स का जो लेजर होता है वो थोड़ा अलग होता है कंपेयर टू पर्सनल एंड रियल. क्यों? क्योंकि नॉमिनल में सोचो आप सैलरी की बात कर रहे हो, कि अकाउंटिंग में ऐसा रूल है कि जो पूरे साल का आपका खर्चा होता है या कमाई, नॉमिनल अकाउंट, उसको जमा करके आपको प्रॉफिट एंड लॉस नाम के एक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है पूरे साल का समरी के लिए. ये पर्सनल के लिए नहीं एप्लीकेबल है, ये रियल के लिए एप्लीकेबल नहीं है. आज जो मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको मेरे पे थोड़ा ज़्यादा भरोसा करना है, थोड़ा ज़्यादा विश्वास करना है. क्यों? क्योंकि जो सिखाया जा रहा है वो कॉन्सेप्ट एक्चुअली लास्ट चैप्टर में एप्लीकेबल है, और वो लास्ट चैप्टर में आपको आपकी आंखों के सामने नज़र आएगा, आज नहीं आएगा. थोड़ा मेरा विश्वास ज़्यादा कर लेना. ओके, नॉमिनल अकाउंट, सैलरी का आज हम प्रिपेयर करेंगे. मेरे पीछे फेब 1 को सैलरी का डेबिट बैलेंस दिया है 30,000. ये सैलरी के खाते में डेबिट साइड पे आ जाएगा. फिर 5 तारीख को आपने चेक से सैलरी दिया, इसकी सिंपल एक जर्नल एंट्री आ जाएगी. और फिर मार्च में, ये इंपॉर्टेंट है, फेब अलग महीना है, मार्च अलग महीना है. नॉर्मली मार्च का महीना फाइनेंशियल ईयर का एंड होता है. अगर आप कैलेंडर आपके घर में रखते हो, उसका एंड दिसंबर में होता है. बट दुनिया में जो फाइनेंशियल ईयर नाम का कुछ चीज़ होता है वो मार्च के महीने में ख़त्म होता है. हर कंपनी को वो फॉलो करना पड़ता है. 31 मार्च को उनके बुक्स, अकाउंट्स बंद हो जाते हैं. बराबर, ताली नहीं बजती, बंद हो जाते हैं. सो सबसे पहली बात आपको क्या करना है? वेल, you have got to be writing the journal entry for the salaries paid by check. अगर आप ऊपर देख लो, salaries account to bank account 5,000, and immediately मार्च के मंथ में
एक और बार सैलरी आपने दिया जो आई थिंक आपने कैश में दिया 3000। ओके, सिंपल ऑलमोस्ट सिमिलर जर्नल एंट्रीज। लेजर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ऊपर भी सैलरी दिखेगा, मेरे पीछे भी सैलरी दिखेगा, आप में भी सोचोगे सो दो बार सैलरी क्यों बनाया, क्योंकि 2 अलग महीने दिए हैं। पहला फरवरी का मंथ है और उस फेब के मंथ में डेबिट में सैलरी का बैलेंस है 30,000। फरवरी ये अलग सॉल्व होता है और ये अलग सॉल्व होना चाहिए हर महीने का। फिर फरवरी में एक जर्नल एंट्री सैलरी की हुई है, उसका मैंने टू बैंक लिख दिया। मार्च का मत लिखना क्योंकि ये फरवरी का मंथ है, मेरे ऊपर फेब का मंथ मैंने आपको बताया है। ओके, थोड़ा मैं मेरा डायरेक्शन चेंज कर देता हूँ तो आपको विजिबिलिटी में दिक्कत नहीं होगी। फेब के मंथ को बंद करो। अगेन सर मार्च का बाकी है, मार्च का अगला सैलरी का अकाउंट है, लेजर है, राइट ना, उसका टेंशन मत लो, सोचो मत। फेब का आपने बैलेंस लिख लिया और जर्नल एंट्री का पोस्टिंग कर लिया। अब डेबिट साइड हैवी है 35,000, तो द मोमेंट आप उसको बैलेंस करो, बाय बैलेंस कैरीड डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। प्लीज अंडरस्टैंड ये टू बैलेंस आप कब लिख रहे हो, 1 मार्च। द फेब मंथ इज ओवर बट द प्रॉब्लम इज नॉट ओवर। सैलरी तो हर महीना देना है, तो प्रैक्टिकली एक्चुअली में ये सर कैरीड डाउन ब्रॉट डाउन क्या है, जब आप अगले महीने के अकाउंट को ओपन करो, आपने नोटिस किया क्या अपीयर आया 1 तारीख को, वही बैलेंस जो ऊपर लिखा था। तो आप तो हमेशा लिखते हो कैरीड डाउन ब्रॉट डाउन, फिर खत्म नहीं होता, हकीकत में तो वो कंटिन्यू होता है, इस तरीके से कंटिन्यू होता है, ये तरीके से मार्च के मंथ में या अगले मंथ में। अब आप मार्च का मंथ स्टार्ट करो। ओके सॉरी, उसका जो पोस्टिंग है वो टू कैश है, इसका टोटल खत्म हो गया, इसका टोटल 38,000, क्रेडिट में कुछ नहीं। नाउ प्लीज पे अंडरस्टैंड दैट दिस 38,000 विच इज द डिफरेंस इज नॉट द बैलेंस। अगर आप क्वेश्चन पे अगर आपने ध्यान नहीं दिया, ध्यान दीजिए, लास्ट का लाइन देखिए क्या कहता है, अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। अभी आप जहाँ पे हो लेजर में, दैट इज 31 ऑफ मार्च, क्योंकि मार्च का महीना खत्म हुआ, तो 31 ऑफ मार्च को बैलेंस नहीं लिखना, क्योंकि जो भी बैलेंस होता है जो है 38,000 आपको ट्रांसफर करना पड़ता है पीएनएल अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इफ समबडी वुड आस्क मी, जो सही होगा सर ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कब बनता है, क्या होता है, आपका एक सेकेंड लास्ट चैप्टर है आपके टेक्स्ट बुक में जिसको फाइनल अकाउंट्स कहते हैं। जब भी मैं ये चैनल पे वो पढ़ाऊँगा तब उसका खुलासा ज़रूर करूँगा। अभी आपको इतना ही मानना है मेरी बात, साल ख़त्म होने पे रेंट हो, सैलरी हो, वेजेस हो, एडवर्टाइजमेंट हो, बैड डेब्ट्स हो, डिस्काउंट हो, इंटरेस्ट हो, कमीशन हो, जो सारे नॉमिनल अकाउंट होते हैं उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है एंड में एक बार, साल के एंड में एक बार, बार बार नहीं, हर महीने को नहीं, हर महीने को बैलेंस होता है, साल के एंड में वो बाय प्रॉफिट एंड लॉस करके टाटा बोल के चला जाता है। दिस इज व्हाट इज यूनिक डिफरेंट एट द ईयर एंड इन अ नॉमिनल अकाउंट, थोड़ा ध्यान ज़रूर रखना। अभी के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, अपने पोजीशन पे लौट आता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर मुझे कुछ बताना है, मेरी टीम को कुछ बताना है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करें। अगर आप पुराने हो तो दोस्तों के साथ में लेक्चर को शेयर करें। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबाएं, हमको वो चैनल के ग्रोथ में डेफिनेटली हेल्प करता है। मैं कभी लाइक की बात नहीं करता, बट येस रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि अगर कंटेंट समझ आ गया है, कॉन्सेप्ट समझ आ गया है, तो लाइक डेफिनेटली कर ली। जब तक मैं आपको दोबारा ना मिलूँ, आप अपना ख्याल रखिए, बड़ों का, छोटों का, परिवार वालों का, सबका ख्याल रखिए। गुड डे टू ऑल, गॉड ब्लेस, बाय फॉर नाउ।